عدالت انصاف میں شکست کا خوف یا دنیا بھر میں سبکی کا ڈر؟ بھارت گھٹیا حرکتوں پر آ گیا۔ کلبھوشن جادو کیس سے متعلق پل پل باخبر رکھنے پر ٹویٹر انتظامیہ کو شکایت۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا ذاتی اکاؤنٹ معطل۔ Humpty Dumpty was sitting on a flimsy wall, and when he fell, that was the end of Humpty Dumpty. And we shall see that the wall that India is sitting on is a flimsy wall of lies, and it will come crashing down when probed. These are proceedings launched for political theatre, making a claim for relief that's unsustainable, and they should be dismissed. India shirked from even approaching the gateway to engage the Vienna Convention on Consular Relations. It never established nationality, and we can see why. By clothing an individual with a false passport, a false Muslim name by way of cover, giving him an authentic passport, making sure that he was embedded in its system. How can India possibly provide us with a copy of his actual passport? It shows the lie to India's position even more dramatically. کلبھوشن دہشت گرد ہے، بھارتی درخواست مسترد کی جائے۔ پاکستان کی عالمی عدالت سے استدعا، دستاویزات، خطوط اور میڈیکل رپورٹ بھی پیش۔ بھارت نے شہریت کا اعتراف نہیں کیا تو کاؤنسلر رسائی کا مطالبہ کیسا؟ نیوی کمانڈر نے مسلم شناخت والا پاسپورٹ کیوں رکھا؟ ہمٹی ڈمٹی کی طرح بھارت بھی جھوٹ کی دیوار پر بیٹھا ہے۔ خاور قریشی کے ٹھوس دلائل، بھارتی وکلاء چکرا کر رہ گئے۔ سماعت آج پھر ہوگی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے۔ بیٹر سینس ول پریویل۔ دھمکیاں دو نہ سبق سکھانے کی بات کرو، کان کھول کر سن لو، حملہ کیا تو ایک لمحہ بھی نہیں سوچیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ پاکستان نے صاف صاف بتا دیا، آگے بات کہاں تک جائے گی اللہ ہی جانتا ہے۔ عمران خان کی ہوش مندی سے کام لینے کی وارننگ، ثبوت اور شواہد کے بغیر الزام لگانے پر جواب مانگ لیا۔ پلوامہ حملے اور دہشت گردی معاملات پر مذاکرات کی پیشکش۔ پاکستان پہ الزام لگا دیا، نہ کوئی ایویڈنس، نہ کوئی سوچا کہ اس کے اندر پاکستان کا کیا فائدہ ہے۔ کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں، ہم تیار ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے، دہشت گردی کی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان کی طرح مسئلہ کشمیر بھی مذاکرات سے ہی حل ہوگا۔ بھارت میں نئی سوچ کی ضرورت ہے، انڈیا کو سوچنا ہوگا کشمیری نوجوان کیوں انتہا کو پہنچے۔ وزیر اعظم کا پالیسی بیان۔ ہندوستان میں نئی سوچ آنی چاہیے، ایک انٹروسپیکشن آنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کشمیر کے نوجوان اس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں جو وہ موت کا ان کا خوف ہی اتر گیا ہے۔ بھارت چودراہٹ نہ دکھائے، مذاکرات کی میز پر آئے، چین بھی میدان میں آ گیا۔ جنگی جنون کے شکار مودی سرکار پر ہوش کے ناخن لینے پر زور، پاک سعودی تعلقات کے فروغ پر مسرت کا اظہار۔ سی پیک میں تیسرے فریق کی شرکت پر فریم ورک طے شدہ ہے، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کی بریفنگ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت، یورپی پارلیمنٹ کے ارکان اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر کی رپورٹ کے حامی۔ بھارت سے کشمیریوں کا قتل عام بند کرنے کا مطالبہ۔ ہندوستانی حکومت اور ہندو انتہا پسندوں کے الزامات بے بنیاد اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ بھارت کو بغیر کسی ثبوت کے اس قسم کی الزام تراشی کو فوری طور پر ترک کرنا چاہیے۔ یوں ہی آنکھیں نہ دکھاؤ، ثبوت ہیں تو سامنے لاؤ۔ صدر آزاد کشمیر نے بھی وزیر اعظم پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی۔ کسی بھی مہم جوئی پر منہ توڑ جواب کا اعادہ، مسئلہ کشمیر سفارتی اور سیاسی طریقوں سے حل کرنے پر زور۔ پاکستانی سفارتکاروں اور حکام کی ناقص سیکیورٹی، قائم مقام بھارتی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی۔ نئی دہلی میں ہائی کمیشن کے باہر 18 فروری کے احتجاج کی اجازت پر تشویش کا اظہار، مراسلہ بھی حوالے۔
पुलवामा हमले के बाद पाक भारत ताल्लुकात में मजीद बिगाड़, पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा को खत, कशीदगी में कमी के लिए फौरी मुलाकात, इल्ज़ामात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पुलवामा हमले के बाद भारतीय मुसलमान और कश्मीरी तशद्दुद का हदफ, कुछ अनासिर वाक़े को दलील के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का इजहार तशवीश। मोदी सरकार के बाद भारतीय इंतजामिया भी दुश्मनी में अंधी, राजस्थान पहुंचे पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने की वार्निंग, इंतहा पसंदों ने सानिया मिर्जा को पाकिस्तानी बहू करार दे दिया, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तेलंगाना का एजाज वापस लेने का शोर। मैं थानू प्रार्थना करदा कि तुसी बैठो। दहशतगर्दों का कोई मजहब है ना कौम, अमन के लिए जंग सबकी है। नवजोत सिंह सिद्धू इंतहा पसंदों के सामने डट गए, भारतीय पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुखालिफ अरकान को खरी खरी सुना दी। बदनाम जमाना स्मगलर और रुकन बिक्रम सिंह भागने पर मजबूर। जहां मैं पहले खड़ा था आज भी और कल भी वहां पे अडिग रहूंगा। आतंकवाद की कोई जात नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं, कोई कौम नहीं, और इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू आज भी अपने स्टैंड पे खड़ा है, अडिग है। आज कुछ फोटोएं दिखाई। All the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. भारतीय कॉन्वॉय पर हमला, पुलवामा में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी, 5 फेरोज की कर्फ्यू, काबिज फौजियों के हाथों शहीद नौजवानों की नमाज जनाजा, पूरा कश्मीर शिरकत के लिए उमड़ आया, हथियार न फेंके तो तुम्हारे बच्चे मार देंगे, भारतीय फौज की कश्मीरी माओं को धमकियां, हरियाणा में कश्मीरियों की दुकानें जबरदस्ती बंद करा दी गईं, इंतहा पसंदों से तंग कश्मीरी तलबा भी घर लौटने पर मजबूर। जारी अकाउंट्स के आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत की तमाम नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद। अदालत मफरूजों पर काम नहीं कर सकती, मुस्तकबिल के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए फैसला नहीं दिया जा सकता है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल, तबीयत बेहतर, गुर्दों में पथरी की तस्दीक, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात, नून लीगी सदर की आमद पर कारकुनों की धक्कुम पे। अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टीज का इजलास आज शेड्यूल, शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, लीगी सदर लाहौर से इस्लामाबाद नहीं जा सकेंगे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म से मुल्क के 150 बड़े टैक्स दहिंदगान की आज मुलाकात, टेलीकॉम, बैंकिंग सेक्टर और बड़ी कंपनीज के अफसरान मदऊ, वज़ीर खजाना असद उमर भी शरीक होंगे। दो 2107 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का मामला, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ऐलान पर कार्रवाई शुरू, शाही फरमान जारी होने के बाद सिफारत खाने और काउंसिल खाने को फहरिस्तें बनाने की हिदायत जारी। तानह साहिवाल की तहकीकात, JIT रिपोर्ट फिर लेट, मुश्तरका तहकीकाती टीम ने मजीद 3 रोज मांग लिए, महकमा दाखिला पंजाब का रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर और साहिवाल के लिए फौरी मुतबादिल जजेस के नाम मांग लिए। कराची में बदअमनी और सियासी कारकुनों पर हमले नाकाबिल कबूल, तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की रैली, वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज,
सिंध हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा। सूरज लाइन फट गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पार्क की गई 4 गाड़ियां अचानक नाले में धंस गईं। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत निकाल ली। खजाने की तलाश। कराची में शहरी ने पीरनी के कहने पर पूरा घर खोद डाला। मशकूक खुदाई की इत्तला पर पुलिस की दौड़ें, 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। शहर-ए-कायद में बारिश की पेशगोई। एमडी वाटर बोर्ड ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। वाटर और सीवरेज डिपार्टमेंट के अमले की छुट्टियां मनसूख। मुलाजिमीन को हर वक्त तैयार रहने का हुक्म। कोयटा में बादलों की एक बार फिर एंट्री। बुध से जुमेरात तक रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और पेशावर में भी बारिश की पेशगोई। मुहाफिज जल्लाद बन गए। लाहौर में चौकी शेरशाह पर एहलकारों का मोबाइल चोरी के इल्जाम में जेर हिरासत। 8 साला बच्चे पर वहशियाना तशद्दुद। बरहना करके हीटर पर बिठा दिया। टांगों पर गरम इस्त्री भी लगाते रहे। फुटेज दुनिया न्यूज को मिल गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं सैयद आयशा नाज। दुनिया हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन की टॉप स्टोरी। आलमी अदालत इंसाफ में शिकस्त का खौफ है ये, या दुनिया भर में सुबकी का डर। भारत घटिया हरकतों पर आ गया। वो यूं कि कुलभूषण से मुतालिक पल पल बाखबर रखने पर ट्विटर इंतजामिया को शिकायत लगा दी। तर्जमान दफ्तर खारिजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का ज़ाती अकाउंट मुअत्तल करा दिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। इमरान, कहिएगा, यकीनी तौर पर इसे जो आलमी अदालत इंसाफ से अपडेट्स आ रही थी उसे रोकने का एक बहाना है, कोशिश है, क्या कहा गया है भारत की जानिब से और ट्विटर की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आई हो? जी बिल्कुल, ट्विटर की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आई है वो है अकाउंट सस्पेंडेड विद वायलेट ट्विटर रूल्स के। ट्विटर रूल्स की जो खिलाफवर्जी है उसकी बुनियाद पे इसको सस्पेंड किया गया है। और बुनियादी तौर पे भारतीय हुकूमत ने जो वहाँ की ट्विटर इंतजामिया को डॉक्टर फैसल के अकाउंट की शिकायत की थी, भारतीय रीजन ऑफिस में ट्विटर का जो रीजनल ऑफिस था वहाँ पे की गई थी। बुनियादी तौर पे भारत जो है वो आलमी अदालत इंसाफ में शिकस्त नजर आने पर ये घटिया हरकतें कर रहा है। और मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय मुजालम उजागर करने पर भारत ने वो 6 हथकंडों का इस्तेमाल किया है। और उसके साथ साथ जो एक और अहम डेवलपमेंट थी जिसको डॉक्टर फैसल जो कि तर्जुमान है वज़ारत खारजा के बड़ा हाईलाइट कर रहे थे कि वो जो है यूरोपीय पार्लियामेंट में मकबूजा कश्मीर की मुख्तूश जो सूरत हाल है उस पर मुज़ाकरा हुआ। और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी कमिश्नर रिपोर्ट की हमायत और भारतीय रिपोर्ट की मुखालफ कर दी। और यूरोपीय अरकान ने पार्लियामान का भारत से बड़ा मुतालबा भी सामने आया कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे और भारत मकबूजा कश्मीर में कत्ले आम बंद करे। ये सारी वजूहात थी जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो भारतीय की हुकूमत ने वहाँ पे रीजनल जो हेडक्वार्टर था शिकायत दायर की और जिस पर यह अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इमरान। आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण केस की समाअत हुई। पाकिस्तान ने भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। दस्तावेजात, खतूत और मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। पाकिस्तान ने सवाल उठाए हैं कि भारत ने शहरियत का एतराफ़ नहीं किया तो काउंसलर रसाई का मुतालबा कैसा? नेवी कमांडर ने मुस्लिम शनाख्त वाला पासपोर्ट क्यों रखा? हमटी डमटी की तरह भारत भी झूठ की दीवार पर बैठा है। खावर कुरैशी के ठोस दलाइल पर भारतीय वकला चकरा कर रह गए। समाअत आज फिर होगी। Humpty Dumpty was sitting on a flimsy wall, and when he fell, that was the end of Humpty Dumpty. And we shall see that the wall that India is sitting on is a flimsy wall of lies, and it will come crashing down when probed. These are proceedings launched for political theatre, making a claim for relief that's unsustainable, and they should be dismissed. India shirked from even approaching the gateway to engage the Vienna Convention on Consular Relations. It never established nationality, and we can see why. By clothing an individual with a false passport, a false Muslim name by way of cover, giving him an authentic passport, making sure that he was embedded in its system. How can India possibly provide us with a copy of his actual passport?
It shows the lie to India's position even more dramatically. Even if the Vienna Convention was engaged, consular access to a prima facie case of espionage suspect would violate Articles 5A and 55. They have been robust and continue to be robust to uphold the rule of law, most recently on the 18th of October 2018, when the Peshawar High Court had no hesitation in overturning 70 plus death sentences and convictions for terrorist offences. He was a serving officer of the Indian Navy due for retirement in 2022. He was 47 at the time that he was arrested, with a cover name of Hussein Mubarak Patel, which was used for intelligence operations on behalf of RAO, India's principal foreign intelligence agency. RAO began to sharpen the focus on undermining Balochistan around 2014, when the new government came to power in India. Commander Jadhav was apprehended soon after having crossed the border into Pakistan from near Saravan. His intention was to meet his assets, the instruments of terror, the terrorists used by India. He was traveling with his RAO handler, Rakesh, up to the border. India resists, according to Mr. Salve, the temptation to answer the following questions. When did he retire and why? Well before retirement age. What evidence is there that he's I'm very happy to ask my learned friend for an explanation as to why, if Commander Jadhav had retired, on the 29th of February 2016, Commander Jadhav's account received 90,605 rupees by way of pay. Why was he in possession of an authentic Indian passport with a cover name? If he was forcibly taken from his cover business base, how did he end up making the 9-hour journey to Pakistan in the boot of a car? And what steps did India take to seek an investigation within Iran as the alleged kidnap? और अब भारत में पाकिस्तानी सफारतकारों और हुकाम की सिक्योरिटी का मामला भारतीय कायम मकाम हाई कमिश्नर को दफ्तर खारिजा बुलाया गया। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन की नाक़िस सिक्योरिटी पर इजहार तशवीश किया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी एशिया पैसिफिक ने एहतजाजी मुरासला थमाया। भारत ने 18 फरवरी को पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज की इजाज़त दी थी और इस दौरान कुछ इंतहा पसंद हिंदुओं ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में घुसने की कोशिश की। इस पर पाकिस्तान की जानिब से सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया है। पाकिस्तान ने भारतीय हमले की सूरत में फौरी जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पॉलिसी बयान में कहा है कि भारत से दहशतगर्दी के मसले पर भी बातचीत के लिए तैयार हैं और अफगान मसले की तरह मसला कश्मीर भी मुज़ाकरात से ही हल होगा। उन्होंने पुलवामा हमले की तहकीकात में ताउन की पेशकश और शवाहिद पर कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अरबों रुपए का नुकसान उठाया। भारतीय हुकूमत बताए कि अगर माजी में ही रहना है तो मामलात कैसे हल होंगे। हमसाया मुल्क में भी नई सोच आनी चाहिए। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विजिट जो क्राउन प्रिंस की थी, जो हम इतनी देर से प्लान कर रहे थे, कोई अहमक भी इस तरह का वाक़या करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फ़ायदा क्या है? अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो, आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, कोई आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी ज़मीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफ़र कर रहा हूँ, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे
کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہا ہے ہمارے سے یہ دشمنی ہے, یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے. جب بھی ہندوستان سے ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, ہندوستان کی پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے دہشت گردی کی بات کی جائے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دہشت گردی ایک سارے خطے کا ایشو ہے اور ہم بالکل تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں دہشت گردی ختم ہو. دیکھیں, ہندوستان میں ایک نئی سوچ آنی چاہیے, ایک انٹرسپیکشن آنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے. کشمیر کے نوجوان اس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں جو وہ موت کا ان کا خوف ہی اتر گیا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ون ڈائمینشنل آپریشن, ظلم کرنا, ملٹری کے ذریعے مسئلہ حل کرنا, کیا یہ اگر آج تک کامیاب نہیں ہو تو آگے کامیاب ہو جائے گا؟ اگر آج افغانستان کے اندر 17 سال کے بعد ساری دنیا یہ تسلیم کر بیٹھی ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے اور بات چیت سے, ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہوگا, کیا ہندوستان میں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے؟ ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں, آوازیں سن رہے ہیں, میڈیا پہ سن رہے ہیں, پولیٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے, پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے, اسٹرائک کرنی چاہیے. پہلے تو کون سا دنیا کا قانون کسی بھی ایک شخص یا ملک کو جج, جوری اور ایکسیکیوشنر بننے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ کون سے انصاف کے نظام میں ہے؟ دوسری چیز, آپ کا الیکشن کا سال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں بوسٹ ملے گی کہ اگر پاکستان کو سبق سکھایا جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے, پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پریویل. ہم اس میں عقل کریں گے, حکمت استعمال کریں گے اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح افغانستان میں, یہ بھی ڈائلاگ اور بات چیت سے حل ہوگا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.